आमने बोल होते Today we are going to start with a new chapter, this equations. छोटा सा पिटुकला चैप्टर है, जल्दी खत्म कर होगा 2 दिन में 3 महीने में, लेकिन उसके लिए आपको फोकस रहना पड़ेगा. Look at me. बिल्कुल बोलू नका फक्त. ए गुलकंद, देखो अभी मेरे तरफ. स्टॉप टॉकिंग. डू यू एग्री? अरे नका ना बोलू. अरे काय चाललंय, तुम्हाला कळत नाही का? डू यू एग्री? डू यू एग्री? Equations is the title of the chapter. That's a new chapter that we're going to start today. Please stay focused. Look at me. Do you know do you all agree that what is the general form of the quadratic equation? The general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c, and that is equal to 0. Abhi, whenever you say you have a quadratic equation, it always has 2 roots. It always has how many roots? It always has 2 roots. Now mind you well, यारे क्या चल रहा है? अवनीश इकडे बघ ना. ये रूट का मतलब क्या है? What do you mean by root? रूट का मतलब होता है value of x for which LHS is equal to RHS. ये चैप्टर में बार बार ये लगेगा, ये पता होना चाहिए. Value of x for which, that means the solution of that equation. Abhi, those roots are given by the formula
those roots are given by the form. तुम्ही नका बोलत आहो नाही तर मग then I will wind up the chapter. येत काही नाही उगी बडबड इतकी करतात. The roots of this equation are given by the formula x is equal to minus b plus or minus root of. इस पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला याद रखना है और वो भी स्कूल में हो गया है माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac over 2a. That's the formula by which quadratic equation can be solved. Look, अभी यहाँ ये a क्या है? a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is the constant term. तो फिर इसमें स्टॉप टॉकिंग ना कशाला लिहिता मी सांगितलं का लिहा म्हणून नाही बोलाय की नाही मैंने वाय आर यू राइटिंग तिथे पाहिजे तिथे करत नाही तर नको तिथे अभी लोग इसमें होता है क्या एक रूट होगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac over 2a. This is one root. Another root is minus root of b square minus 4ac over 2a. हम जनरली एक रूट को कहेंगे अल्फा दूसरे रूट को कहेंगे बीटा. समझा? So quadratic equation always ends up with two roots. Now my question is if that is true, वैसे वो फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं. But what I suggest is that in this chapter, no, I never go with the factorization. वो दो numbers देखो, उसका product इतना होना चाहिए, sum इतना होना. Instead of that, go directly with the formula. क्योंकि जब irrational roots होते हैं, तो तुमको वो factorization से मिलते नहीं हैं. So I consider the first question. Nobody will write anything. I consider first equation, and suppose there if I write x square minus 5x plus 6 is equal to 0. So tell me a is what? 1. A is what? 1. B is what? C is what? So x is what? Will be minus of minus 5 plus or minus root of minus 5 का square 25 minus 4 into 1 into 6 and that over 2 into 1. So that is 5 plus or minus root of 25 minus 4 which is 1 and that over 2. तो एक रूट होगा 5 plus 1 by 2, दूसरा रूट होगा 5 minus 1 by 2. जैसे मैंने बोला था पिटुकला चैप्टर है, आसान चैप्टर है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल कुछ हो ही नहीं सकता. लेकिन एक बार तो जिंदगी में पहली बार तो करना समझना ही पड़ता है ना कैसे करने का. अभी ये हो गया रूट्स. I consider the second equation. I consider the second example. And look at me. Look at me. I give you x square plus 4x that plus 4. This is 0. तो फिर यहां बोलो मेरे को a क्या है, b क्या है, c क्या है. तो फिर x क्या होगा? -4 प्लस और माइनस रूट ऑफ 4 square 16 minus 4 into 1 into 4 over 2 into a, that is 1. So that is equal to -4 plus or minus 0. So that over 2. तो एक रूट होगा -4 plus 0 by 2, -4 plus 0 by 2 and -4 minus 0 by 2, but that is -2. समझा? I gave you the third question, and the third question is what? Third question is x square
x square plus x minus 1 is equal to 0. अभी a is what? b is what? c is what? अभी x is what? minus 1 plus or minus root of 4 minus rather 1 minus 4 into 1 into minus 1 over 2 into 1. So that this is equal to minus 1 plus or minus 1 plus 4 that is 5. ये समझता है क्या तुमको? That divided by 2 into 1. So that this is equal to this is minus 1 plus or minus, that means this is एक बार होगा plus root of 5 that by 2 और फिर दूसरा रूट होगा minus 1 minus root 5 that by 2. अभी look at me. I give you another example. X square plus x plus 1 is equal to 0. Tell me a is what? क्या होता है? A is 1, B is 1, C is 1, X is what? Follow. Minus 1 plus or minus root of 1 minus 4 into 1 into 1 that over 2 into 1. So minus 1 plus or minus root of minus 3 that over 2. अभी 10th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया गया था, पर 10th स्टैंडर्ड में तुमने कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि तब कभी भी कुछ नहीं किया तो 10th में क्या करेंगे? लुक, तुमको यह बताया गया था कि पॉजिटिव 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और नेगेटिव 2 का स्क्वायर भी 4 होता है. तो रूट ऑफ 4 इज प्लस 2 और माइनस 2, आइदर प्लस और माइनस 2. बट ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं मिलता है कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है. स्क्वायर ये कभी नेगेटिव होता नहीं है रियल नंबर के लिए. एंड देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर अगर आता है तो यू यूज टू से दिस इज इनवैलिड. बट एंड सच क्वेश्चन ना, क्योंकि वाई इनवैलिड? बिकॉज ऐसा एक भी नंबर नहीं मिलेगा कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव है. बट ह्यूमन ब्रेन डज नॉट स्टॉप एट व्हाट कैन एग्जिस्ट. ह्यूमन ब्रेन ट्राइज टू गो बियॉन्ड व्हाट कैन एग्जिस्ट. समझा क्या? वो अपने को मिल सकती है क्या, इसके लिए हम डिजर्व करते हैं क्या, इसके बारे में सोचते नहीं है और इमेजिन करते बैठते हैं, फिर रातों में रात भर नींद नहीं आती. समझा क्या? तो यू स्टार्ट इमेजिनिंग. तो फिर ऐसा इमेजिन करने के बाद नोटेशन डेवलप होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इज इमेजिनरी नंबर आई. स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट? आई, इमेजिनरी नंबर. या ये इसको इमेजिनरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं होता, फिर भी हम सोचते हैं उसके बारे में. समझा क्या? तो फिर अगर तुम्हारे पास रूट ऑफ माइनस 2 है so that can be root 2 root 1, but that root 2 and root 1 is I. तुम्हारे पास अगर रूट माइनस 4 है तो रूट 4 इंटू रूट ऑफ माइनस 1, तो ये 2i. Similarly, if you have got root of minus 3,
then root 3 into root of -1 is root 3 into I. आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का समझना, चैप्टर का समझना नेसेसरी नहीं है, सिर्फ ये नोटेशन समझो. एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस root 3 into I, that over 2. समझने वाली बात ये है कि न्यूमरेटर को ऑलवेज थोड़ा स्प्लिट कर सकते हैं. तो फिर दिस इज इक्वल टू -1/2 प्लस और माइनस √3/2 इंटू I. अब ये इस तरीके का एक आता है रियल नंबर. -1/2 इज रियल नंबर, वो जो एग्जिस्ट होता है वो रियल है, और ये √3/2 I ये एग्जिस्ट ही नहीं होता तो वो इमेजिनरी है. तो इसको एकत्र करेंगे तो दिस बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो दिस I आया तो फिर वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर. समझा? अभी कुछ कुछ होता है, और वो कुछ कुछ ऐसा होता है कि फॉर्मूला में ये रूट के अंदर क्या है, फॉर्मूला में ये रूट के अंदर क्या है, b² - 4ac. ये b² - 4ac जब नेगेटिव बन गया तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स. रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, नेचर ऑफ रूट्स. सो b² - 4ac ये जो रूट के अंदर का टर्म था वो नेगेटिव बनता है तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स. वो अगर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो रूट्स आर रियल. जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो इमेजिनरी नहीं है, वो रियल है. समझा ना? जो एग्जिस्ट होता है. तो ये √5 एग्जिस्ट होता है, ये √0 एग्जिस्ट होता है, 0 है पर एग्जिस्ट होता है. ये काय होता है 1, वो एग्जिस्ट होता है. तो हमें एक ऑब्जर्वेशन यहाँ ऐसा मिल गया कि ये b² - 4ac की जो टर्म है, इकडे बघ की सोन्या, ये रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो कॉम्प्लेक्स रूट्स बन जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स बन जाते हैं, अदरवाइज दे आर रियल. तो अगर पहले की तरफ देखेंगे, एग्जाम्पल की तरफ, तो फिर 3 and 2 दे डू एग्जिस्ट. पर कहा तुमको 2 बॉयफ्रेंड है, ऐसा पॉसिबल है? काय अवनीशला 2 बॉयफ्रेंड आहेत, तुमको 3 बॉयफ्रेंड है, ये भी पॉसिबल है. तो 2 does exist, that number 2 does exist, that number 3 does exist. So these roots are real. These roots are what? Real. वो रियल है और डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है. एक है 2, एक है 3, वो रियल है. स्टॉप टॉकिंग. सेकंड के तरफ देखेंगे तो जब ये -2 और -2 मिला तो -2 is a real number. So these are real, but they are equal roots. Real and equal. They are real and equal. समझा क्या? They are real and equal. समझा क्या? अभी यहां क्या हो गया, जरा मेरे तरफ देखो. स्टॉप टॉकिंग. ये √5 ये एग्जिस्ट होता है कैलकुलेटर पर. रूट का 5 नहीं, 5 का रूट निकाल सकते हैं. आणि therefore these roots are real. By the way, they are distinct. Just try to understand. Root of 4 is 2, root of 1 is 1, root of 9 is 3. तो जो स्क्वायर्स होते हैं उसके रूट वो ऐसे होते हैं, लेकिन उसको कहते हैं रैशनल. ये 1 2 3 4 ये क्या है, रैशनल. बट √2 √3 √5 √6 √7 √8 √10 कहेंगे तो रूट ऑफ नॉन स्क्वायर्स विल बी इरेशनल.
तो ये √5 इरेशनल हो गया. तो these roots are real and irrational. These are real and irrational. समझा क्या तुमको? लेकिन अभी इसमें एक गड़बड़ होता है. एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है. जब प्लस और माइनस होता है तो उनको कॉन्जुगेट कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट. काजुगेट नहीं, कॉन्जुगेट. And therefore these are irrational conjugates of each other. अभी ये कॉन्जुगेट्स का मतलब क्या है? एक रूट अगर p प्लस रूट q है तो दूसरा रूट p माइनस रूट q ही होना चाहिए. अगर उन्होंने बोला कि एक रूट है 3 प्लस रूट 5 तो दूसरा रूट 3 माइनस रूट 5 ही होना चाहिए. डायरेक्ट. अभी यहां जब I आता है तो these are complex roots. So here the roots are not real, they are complex. But then again what happens is that एक के लिए है प्लस साइन, एक के लिए है माइनस साइन, तो फिर ये हो गए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स. ये इरेशनल और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? कॉन्जुगेट्स. तो एक रूट अगर a प्लस आई बी है तो एक रूट a माइनस आई बी होता है. भूल जाते कभी कभी हम, अभी हमारा रोल बदल गया है. कॉलेज के दिन की याद आती है. ऐसे नजर बिरबिरत हंसते. अभी समझा क्या? तो ये हो गए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स. बाद में समझा क्या? ये समझा क्या तुमको? तो फिर अभी जरा मेरे तरफ देखो. अभी ये सब होना मतलब क्या होना? Whether the roots are complex or real, ये एक दूसरे का ऑपोजिट है ना. कॉम्प्लेक्स रियल, they are the two sides of the coin. अगर रियल है तो उसके बीच में रियल के अंदर ये इक्वल है या डिस्टिंक्ट है? -2 - 2 इक्वल था, 2 and 3 डिस्टिंक्ट था. तो इक्वल है या डिस्टिंक्ट है? फिर वो रैशनल है या इरेशनल है? आई रिपीट, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 ये सब रैशनल है. √2 √3 √5 √6 √7 √8 √10 these are irrationals. तो रैशनल है या इरेशनल है? ये सब कुछ डिपेंड करता है ये जो रूट के अंदर क्या है इस पर. तो ये जो b² - 4ac है इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनंट. इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेट. ये ऐका रे जरा काहीतरी वेगळ्यासारखं. डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्लासिफिकेशन, मेकिंग सेपरेट. और जो फंक्शन वो करता है वो डिस्क्रिमिनेंट हो गया. एंड दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा. वो जो इकोनॉमिक्स में डेल्टा यूज करते हैं कि नहीं चेंज के लिए, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, वो वाला डेल्टा. समझा? तो फिर इन दिस केस व्हाट हैज हैपेंड इज द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. सेकंड केस में क्या हो गया? रियल एंड इक्वल. आता रियल एंड डिस्टिंक्ट कब हो गया? ये क्या है? अभी हो गया. ये कब हो गया? वेन ये जो डेल्टा है वो 1 है और ये डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए वो डिस्टिंक्ट रियल हो गया और उसके अंदर वो रैशनल हो गया. सी, रियल इज द बिगर कैटेगरी और उसके अंदर रैशनल इज सब क्लास. समझा ना? इंडिया इज अ कंट्री एंड महाराष्ट्र इज अ स्टेट, सब क्लास. समझा? सबसेट. अभी यहां क्या हो गया? ये रियल एंड इक्वल है व्हेन दिस डेल्टा इज 0. रूट के अंदर जो है वो डेल्टा होता है, वो 0 है तो रूट्स आर इक्वल. अभी इस केस में क्या हो गया कि ये डेल्टा ये नॉन स्क्वायर है. ये नॉन स्क्वायर है. पहले केस में वो डेल्टा क्या था? स्क्वायर था, परफेक्ट स्क्वायर था. अब ये स्क्वायर नहीं है. अभी ये रूट कॉन्जुगेट कब होते हैं? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब होते हैं? व्हेन डेल्टा इज अ लेस देन 0, मतलब निगेटिव. तो रूट्स का नेचर क्या है? नेचर क्या है? नेचर मतलब रियल, कॉम्प्लेक्स, रैशनल, इरेशनल, इक्वल, डिस्टिंक्ट, सब कुछ डिपेंड करता है वो डेल्टा के ऊपर. ये आहे तिथे परत काय लिहिते? डेल्टा के ऊपर.
तो अभी जब डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, देखो मेरी तरफ, जब डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो म्हणजे नॉन निगेटिव, तो वह रूट्स क्या होते हैं? रियल। जब लेस देन जीरो निगेटिव होता है तो ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अभी कॉन्जुगेट का मतलब क्या? एक है a प्लस आई बी, तो दूसरा होगा a माइनस आई बी। ये डेल्टा जीरो है तो रियल एंड इक्वल। हो कि अभी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो मतलब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो में जीरो या पॉजिटिव, जीरो इज नॉट पॉजिटिव, जीरो इज नॉट नेगेटिव एज वेल। समझा? तो ये हो गए रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन उसमें अगर ये डेल्टा स्क्वायर है तो दे आर रियल, अमंग दैट दे आर रैशनल। और अगर ये नॉट स्क्वायर है तो दे आर रियल एंड इरेशनल। ये हो गया टेबल फॉर नेचर ऑफ रूट्स। ये क्या हो गया? नेचर ऑफ रूट्स। योर रूट्स हैव टू बी इन द नेचर, बट दिस इज द नेचर ऑफ रूट्स। समझा क्या तुमको? अभी ये समझा क्या? हाँ, तो आप फिर अभी ये सब एग्जाम्पल्स लिखो, पहले वो फॉर्म लिखो, सब कुछ लिखो। अभी एक एग्जाम्पल भी लिखो, करो। हाँ, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये ट्रू है। बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल नंबर ना। तो ऐसा कैसा होगा? ऑल महाराष्ट्रियंस आर इंडियन, बट ऑल इंडियंस आर नॉट महाराष्ट्रियन। वो मारवाड़ी भी होता है कि नहीं? कुमाड़ी भी होता है। महाराष्ट्रियन है, मारवाड़ी थे ना, मारवाड़ी थे। हे झालं का बाळांनो? अभी पहले वो फॉर्मूला लिखो, फिर वो एग्जाम्पल्स लिखो। ये चैप्टर पिटुकला चैप्टर है। फिर उसके बाद हम रेशो प्रोपोर्शन को उड़ाएंगे। तो दिस इज हाउ। करो। एंड विल बी लेफ्ट विथ ओनली वन चैप्टर, बिग चैप्टर इज डिस्ट्रीब्यूशंस। बस, है कि नहीं? इतना बड़ा सिलेबस, जो सब सिलेबस जितने भी है उसमें बड़ा है। मॉड्यूल के तरफ देखो, साइज ऑफ द मॉड्यूल, वॉल्यूम ऑफ द मॉड्यूल देखो। फिर भी वी आर कंप्लीटिंग गुड इन एडवांस, दैट टू विद द सॉल्विंग ऑफ एमसीक्यू, एमसीक्यू की प्रैक्टिस सबके साथ। ये क्यों पॉसिबल हुआ? ये रात के वजह से पॉसिबल हुआ। रातों में करते हैं तो दिन में अच्छा लगता है। आज रात करेंगे क्या? पर एक भी लेक्चर को मिस मत करो, क्योंकि दैट इज प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड। यहाँ जरा हम बड़बड़ करते हैं, बट दैट इज प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड। 14th को बिफोर आई लीव, आई प्लान टू कंप्लीट द सिलेबस। समझा? तर खाली घ्या, वर घ्या, तुझं तू लिही आता, कर. तू कर रे सोन्या, ते येतं का काही? कर. आहेस केवढा, बोलतो केवढा. हो गया क्या?
करो जल्दी जल्दी. 15th evening I'll reach there. 16, 17, 18 morning I'll start. By 16th night I'll be 18th night I'll be back. 19th से lecture वापिस start. समझा? That's commitment. और 16, 17 को हम रात के लेक्चर्स लेंगे वहां से, क्योंकि वैसे वो तो ऑनलाइन ही लेना है ना. दाखवतो ना तिथल्या जरा रोडवरच्या. वो लास्ट टाइम गए थे ना, तो वो पार्थ के हॉस्टल में, वहाँ सब लड़के लड़के साथ ही रहते हैं ना, तो पड़ोस वाले रूम में एक चाइनीज लड़की थी क्या, एंड आई यूज टू टेक द लेक्चर्स फ्रॉम देयर. तो फिर वो मॅथमॅटिक्स असं काहीतरी डोळे मिसमितात, आणि मग ती येऊन बसायची इथे ते लेक्चर सुरू झाले. अच्छा अशा डोळे, मॅथमॅटिक्स. नहीं पार्थ के लिए अलग सा फ्लैट लिया ना, उस समय नहीं था, वो जस्ट गए थे ना. बाद में अभी वो फ्लैट ही लिया है वहाँ 3 BHK. अभी नहीं है कोई. But I was so surprised to see, jokes apart, but त्यांना ते मॅथमॅटिक्स इतकं असं अप्रूप आहे. हो मॅथमॅटिक्स लेक्चर, मॅथमॅटिक्स. हां, ते 2+3 जरी करायचं झालं ना, तरी हे अमेरिकन्स आणि ब्रिटिश आहेत ना, ते कॅल्क्युलेटरवर करतात माहिती का, त्यांना येत नाही ते. हां, काही नाही येत. मी तुम्हाला सांगितलं ना त्या दिवशी, वेर पार्थ वॉज टॉकिंग टू हिज प्रोफेसर अँड देर वॉज अनदर ब्रिटिश स्टुडंट ओव्हर देअर. काय बरं तो क्वेश्चन होता काहीतरी, हां एक्स प्लस काहीतरी होतं, एक्स 2x-4 इक्वल टू 0, तर एक्स इज वॉट, ऐसा कुछ क्वेश्चन उसके स्टडीज में आया था. तो त्याला नाही जमलं है, तो कैलकुलेटर पे कुछ तो करता बैठा वो ब्रिटिश. आई एम नॉट गेटिंग. मग पार त्याला म्हणलं अरे काय ते 2x=4 आणि मग x=2. ओ यू आर व्हेरी ब्रिलियंट. पार त्याला म्हणलं अरे आमच्याकडे पहिलीतलं बाळ हे करतं. दे आर व्हेरी वीक आउटसाइड इंडिया. Rest of the world except Japan, rest of the world is very very weak in mathematics, and that's where we have an advantage. That's why Indians are doing far better than other rest of the world in software engineering. But hardware में Chinese are miles ahead. वहाँ वो जोड़ते तोड़ते वो करते ही बैठते हैं, तो they are very good in hardware engineering. So most of the manufacturing process you can see is in China. Even Apple was manufacturing in China. Only due to political reasons now Apple is shifting some of the part of production here to India. So you should be happy enough that you are far better than rest of the world, at least in maths. ते असे डोळे करतात ते चायनीज आणि जॅपनीज असे एवढेशे डोळे असतात, दिसतच नाही ते डोळे. वेगळंच. हो गया क्या बाळांनो? बाळांनो झालं का? वो है ना बुक में, देखना बावळे.
झालं का बाळांनो? तो लिखो. Where we lag is on the research attitude because we are not molded for that. सिर्फ टेक्स्ट बुक में है उतना मगअप करो लिखो, that is how you clear the exams, and that is going to be the area of weakness for the Indians. Otherwise, we are far better in intelligence. झालं का बाळांनो? तिला ते इंडेक्स नंबरचा चॅप्टरची रिव्हिजन चालू होते तेव्हा काय ब्रिटिशमध्ये ते चायनीज मुलीला त्या मी पर्सेंटेज इतकं पटकन काढतो याचं इतकं आश्चर्य वाटायचं की दिस प्राइस इज 40 रुपीज बिकम सपोज वॉट 60 रुपीज, देन इफ दिस इज 100 वॉट इज दैट इज इंडेक्स, तो 60/40 into 100 और वो इमीडिएटली बताते 150. So she used to be surprised, yeah, how did you manage? मजा यायची माहिती का. हां, नाही मग त्या चायनीज मुलीलाही एका लेक्चरमध्ये घेतलं होतं, सगळ्या स्टुडंट बघत होते. नाही त्यावेळेला घेतलं होतं, आता नाही, आता कोण मुलगी नाही. हां, फ्रेंडला घेऊ. काय हो गया क्या? काय? हां, गर्लफ्रेंड आहे का मला माहित नाही, पण बघायचा का तुम्हाला व्हिडिओ त्याचे फ्रेंड्स? अरे ते हे आपल्या सगळ्या काकूबाई. जाओ दे, चलो अभी हो गया क्या? लिख के हो गया क्या? नाउ टेक अप द क्वेश्चन. लिखो. इस माहिती विसरलो मी. हो गया क्या बाळांनो? हो गया क्या?
झालं का बाळांनो? लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस. हो गया? अभी देखो, जितना पढ़ाई करना था उतना इस चैप्टर के हो गई है. अभी जो बचा है वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. समझा? डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस. ये इतना ही प्रिपेयर करना है, बाकी कुछ नहीं इस चैप्टर में. हो गया? तो फिर अभी take a few questions before we go to the printed problems. Look, take up the question. Find the value of square root of 3 plus 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 up till infinity. Find the value of this. जरा विचित्र लुकिंग क्वेश्चंस करेंगे, अच्छा लगता है ना. लुक, ठीक है. अभी look at me. How do you read this problem? Is root of 3 plus root of 3 plus root of 3 plus root of 3 plus dot dot dot. I ask you, find the value of 4 upon 1 plus 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 and like that infinity. समझा? इसकी वैल्यू निकालना है. एग्जाम में क्या हो सकता है? 4 की जगह 5 हो सकता है, बस. वैरायटी विल रिमेन द सेम. नाउ टेल मी, हाउ डू यू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन? रूट ऑफ 3 प्लस थोड़े धीरे धीरे पॉजेस के साथ पढ़ो. रूट ऑफ 3 प्लस 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 रूट ऑफ 3 प्लस. अब ये जाता है इन्फिनिटी तक. तो यू कैन सी इन द फर्स्ट क्वेश्चन रूट ऑफ 3 प्लस, ये जो पैटर्न है ये इन्फिनिटी मेनी टाइम्स आता है कि नहीं? अभी सेकंड एग्जाम्पल में क्या होता है? 4 upon 1 plus 4 upon 1 plus 4 upon 1 plus. तो सेकंड में 4 upon 1 plus, ये जो पैटर्न है वो इन्फिनिटी मेनी टाइम्स है. अभी हम क्या कहेंगे? इसकी वैल्यू निकालना है कि नहीं? तो हम कहेंगे लेट दिस बी इक्वल टू एक्स. हमें क्या है? लेट दिस बी इक्वल टू व्हाट? एक्स. तो हमें एक्स निकालना है. तो हाउ डू यू गेट एक्स? क्या बनाओ? हाउ डू यू गेट एक्स? रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 3 प्लस इन्फिनिटली मेनी टाइम्स. व्हाट आई विल डू इज, यहाँ जो पहला रूट ऑफ 3 प्लस है उसको सेपरेट रखो. फिर अंदर से भी वही पैटर्न दोबारा है. जो पैटर्न टोटलिटी में है वही अंदर से पहली टर्म डिलीट करने के बाद या इग्नोर करने के बाद दूसरी पैटर्न भी वही है. अभी इंफिनिटी इज अ वेरी 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 बिग नंबर.
तो इन्फिनिटी माइनस उसमें से 1 रिमूव किया तो भी इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहता है, यार हो कि नहीं? तो these terms are infinity minus 1 which is infinity. तो अगर ऐसे इन्फाइनेटली मेनी टर्म्स एकत्र करेंगे तो वो एक्स ही होता है, वो पैटर्न ही एक्स है. And therefore what happens in the first case is very simple. In the first case what happens is that x is equal to first root of 3 plus को बाजू रखा था, बाकी सब जो है वो वापस x है. तो इतना बड़ा छोटा हो गया कि नहीं? अभी अभी x की वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर किया समझो, तो x स्क्वायर इज 3 प्लस एक्स, therefore x square minus x minus 3 is quadratic equation 1. So where a is 1, b is minus 1, c is minus 3. So x is minus of minus 1 plus or minus root of minus 1 square is 1 minus 4 into 1 into minus 3, that over 2 into 1. So that is equal to 1 plus or minus root 13 ना, that by 2. तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो इसके दो रूट्स हमको मिले, एक रूट है 1/2 प्लस रूट 13/2 और दूसरा रूट है 1/2 माइनस रूट 13/2. डालो ये जो इतना लंबा था इसका ये इतना छोटा सा पिटुकला वैल्यू है, समझा? अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो पहला जो रूट 4/1 प्लस है उसको बाजू रखो. देखो टोटालिटी में ये इन्फिनिटी है, लेकिन पहले को बाजू को रखा तो ये कितने हो गए, इन्फिनिटी माइनस 1, दैट इज ऑल्सो इन्फिनिटी, तो ये भी एक्स बन गया. चलो एक बार टेक्निक समझा तो ये आसान है. तो फिर क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 4/1 प्लस एक्स. चलो तो इट विल बी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 4. समझा ना तुमको? तो x प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज 0. निकालो x क्या होता है, अरे कि नहीं? एवरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम इन द पेपर विल बी टेकन इन द क्लासेस, मैं प्रॉमिस. और ये क्वेश्चन हमने कोई डिफरेंट प्लैनेट से लाया नहीं है, एक क्वेश्चन इस तरीके का मॉड्यूल में एक्सरसाइज में है. Ajubat credit घेते हैं कि आई एम गिविंग यू डिफरेंट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस आर देयर इन द मॉड्यूल और द प्रीवियस पेपर्स. समझा? फिर मैं क्या करता हूँ कि वो सब पता है 1994 से सब पेपर्स में क्या आया था स्पेसिफिकली वो पता है, तो लेता हूँ रैंडमली लेता हूँ क्लास में. समझा? आलं का बाळांनो? हो गया है क्या? गुड क्वेश्चन ना.
आया क्या पढ़ना? हो गया क्या? क्या लगा? तो फिर अभी ये प्रिंटेड क्वेश्चंस के लिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन हम आपको आपके लिए छोड़ते हैं। डिटरमिन द नेचर ऑफ द रूट्स। एक मिनट, स्टॉप टॉकिंग। डिटरमिन द नेचर ऑफ द रूट्स। अभी तुम मेरे को बोलो नेचर ऑफ द रूट डिपेंड्स ऑन व्हाट? डेल्टा। तो पहले ए बी सी आइडेंटिफाई करो। ए कितना है? 5। बी कितना है? -4। सी कितना है? -3। नाउ डेल्टा क्या है? बी स्क्वायर -4ac। तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू -3, तो 16 कितने थे? +16 ना, तो 76। ये पॉजिटिव है। द रूट्स आर रियल है कि नहीं? अभी ये स्क्वायर है क्या? 76 स्क्वायर है क्या? नॉट अ स्क्वायर, सो द रूट्स आर, बोला कि रे, उसमें रैशनल है आणि देयरफॉर these roots are real, rational. I was testing your concentration. तो real, irrational और वैसे भी डिस्टिंग तो है ही ना, तो दे आर डिस्टिंग मतलब डिफरेंट। सिर्फ डेल्टा 0 आया तो इक्वल होता है, बाकी सब डिस्टिंक्टिव होता है। कॉन्जुगेट है ना, तो काय अभी तो काय बोलू याच्यात? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ए क्या है? 1। बी क्या है? सी क्या है? तो डेल्टा क्या है? बी स्क्वायर -4ac ओ इज इक्वल टू 1 -4 इंटू 1 इंटू 1 -3 इज लेस देन 0। तो द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। रूट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? डेल्टा निगेटिव। हो गया क्या बाळांनो? आता ये ऐसे शो दैट वैसे जैसे क्वेश्चन नहीं आ सकते ना एग्जाम में, तो सिर्फ शो दैट को रिमूव करो एंड रूट्स ऑफ दिस आर ए चॉइस इक्वल वगैरह वगैरह। तो एनीवे रूट्स निकालना है, नेचर निकालना है तो करो। नेचर निकालना है तो करो। ए क्या है देखो, बी क्या है देखो, सी क्या है देखो, और डेल्टा निकालो। निकालो। सी इज 1/4। करो। आज शाम को 6:30 वाजता आओ काय, जिनको वो वीडियो में आना है कि नहीं, इंटरव्यू नॉन मैथ स्टूडेंट्स का बोला था वो, कुठे कुठे लिहायचे? गेले हरवले? हाँ 1 नॉन मैथ्स वाले। मैंने बोला था ना वो एक छोटा सा वीडियो करेंगे वो। येणार आहे का नाही येणार आहे?
हाँ चलो करो, आया क्या डेल्टा? तो फिर डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 into 1 b² ना, into 1/4. So 1 minus 1 is 0. So the roots are real equal. समझा क्या? तर काय याला काय डोकं लागतं का? हे मार्क्स शुअर आहेत की नाही? ऐसा तुम करेंगे तो होगा. Determine the value of k. Good question. Easy question. Determine the value of k if these roots are equal. अभी मेरे को बोलो, if the roots are equal, what should happen? Delta must be 0. तुम करेंगे क्या? ट्राई करो, फिर हम करेंगे. हो गया है क्या बाड़ा? नो. तो since the roots are equal, tell me, since the roots are equal, what should happen? Because the roots are equal, delta b² minus 4ac should be 0. तो करो. तो b क्या है? ये तक तुम्हारा सर. b क्या है? k. सो k² -4 into 1 into, अभी c क्या है? नहीं, -1/8. तो -1/8 into k -3. दिस मस्ट बी 0. अरे वो c मतलब जिसमें x नहीं है, वो कांस्टेंट की टर्म c होती है ना, ये एड़े थे. तो फिर k² प्लस 4/8 into k -3, दिस इज 0. समझा? तो फिर तो काय करू मी याचं? तो k² असं करू का? 1/2 into k -3 is 0. आता हे कळेल कसं? तो 2k² प्लस k -3 over 2 is 0. तो k² 2k² plus k -3 is equal to 20. 2 को इधर लाया ना, 2 0 20. तो फिर ये हो गया 0. आता ये इटसेल्फ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो वापस वो फॉर्मूला यूज करो और k की वैल्यू निकालो. तो k will be -1 plus or minus root of 1 minus 4 into 2 into -3 over 2 into 2. So -1 plus or minus, आता काय काय होईल? 25 ना, over 4. So -1 plus 5 divided by 4. -1 minus 5 divided by 4. So 4/4 or -6/4. That is 1 or -3/2. समझा क्या तुमको? हे ऐसा एडजस्टमेंट करने को लगता है कि नहीं? तो इसलिए मैंने कहा था कि बाकी चैप्टर्स करो, ये चॅप्टर है, ये आसान है, जिसको आता है उसके लिए आसान है. पण आता हा 2 कुठे गेला? मग तो परत तो 2 वो नहीं समझता है, फिर मग हे काम से. इसलिए स्टॅटिस्टिक्स के 40
लॉजिकल रीजनिंग के 20, टाइम वैल्यू के 10, ये एज्यूम करके चलो, है कि नहीं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आसान है, वो सबको आता है, वो भी है। प्रोबेबिलिटी वो 40 मार्क में आया ना, प्रोबेबिलिटी किसका, ये 4 मार्क हो तो 3 या 4, 4 मार्क में जगह है 36 में आले के 4 मार्क्स क्या होता है। हो गया क्या भाई, नो हो गया क्या, हो गया क्या भाई, नो ठीक है। अभी दिस क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। लुक, स्टॉप टॉकिंग, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एक मिनट, स्टॉप टॉकिंग। फोर्थ क्वेश्चन इज रियली गुड। Determine the value of k for which both of these equations have real roots. अभी मेरे को बोलो कि ये रियल रूट का मीनिंग क्या होता है। ये रियल रूट्स का मीनिंग होता है डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बेसिकली। अभी स्टॉप टॉकिंग प्लीज। पहला इक्वेशन है x² -4x प्लस k इज इक्वल टू 0। Second one is kx square minus 2x minus 1 is 0। तो यहाँ का डेल्टा क्या होगा, -4 द स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू के, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है कि नहीं। डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना, रूट्स आर रियल प्लीज। यहाँ का डेल्टा क्या होगा, -2 का स्क्वायर -4 इंटू के इंटू -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फिर क्या होगा, 16 -4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और यहाँ क्या होगा, 4 + 4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझा, एक मिनट प्लीज, दिस समथिंग इंपॉर्टेंट। अभी होता क्या है, होता ऐसा है कि 16 - 4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक मिनट ना लियो। तो मैंने अगर ये 4k को इधर शिफ्ट किया तो 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4k, मीन्स 16/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू k। बट ये 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू k है, मतलब k इज लेस देन और इक्वल टू 4। 4 अगर k से बड़ा है तो k 4 से छोटा है, ऑब्वियस है। अभी यहाँ क्या होता है कि 4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, तो k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो ये कैसा है,
क्या है अच्छा है के कैसा है कि वो -1 से बड़ा है और +4 से छोटा है, तो -1 इज लेस देन और इक्वल टू के इज लेस देन और इक्वल टू 4. दैट शुड बी योर आंसर. अभी लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है. तुम बोलेंगे कि यहाँ तुमने 4K इसी बाजू को रखा और इधर शिफ्ट किया. ये क्या है, एक कायतरी करो, दोनों कैसे करते. तो मैंने ये 4K इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि मैंने 16 नहीं शिफ्ट किया. लेकिन अगर मैंने 16 को शिफ्ट किया होता तो यू वुड हैव गॉट -4K इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -16. तो -K इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4. अभी अभी ये इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं है. इक्वेशन होता तो आई शुड हैव डेफिनेटली सेड x इज इक्वल टू 4 और रादर k इक्वल टू 4. पर ये इनइक्वालिटी है. तो अभी जरा मेरे तरफ देखो. स्टॉप टॉकिंग. डू यू एग्री 2 is less than 5? Why? Because नंबर लाइन पे जाएंगे, यहाँ 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है. 5 राइट को है. जो लेफ्ट का होता है वो छोटा होता है, राइट का होता है वो बड़ा होता है. तो 2 is less than 5 for sure. लेकिन अगर मैंने दोनों बाजू को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या होगा. अभी -1 -2 पहले आएगा और -5 नंतर आएगा. तो इसका मतलब -2 इज ग्रेटर देन -. ये टेक्निकल टर्म अगर भूल जाते हैं तो आंसर गलत होगा. तो जब इनइक्वालिटी होती है और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है. तो यू हैव टू से -K इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 मीन्स K इज लेस देन और इक्वल टू 4. आंसर वही मिला. लेकिन यहाँ थोड़ा सा रिस्क है. तुम अगर ये भूल गए तो गए काम से. तुमने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया कि K इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो गए काम से. इसलिए शिफ्ट निगेटिव टर्म, दैट इज ऑलवेज बेटर. ट्रांसफर द निगेटिव टर्म इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग द पॉजिटिव. अभी यहाँ क्या था, दोनों पॉजिटिव थे ना, तो मैंने 4 को शिफ्ट किया. ये समझा. ब्यूटिफुल क्वेश्चन. टेक्निकली ऑल्सो गुड क्वेश्चन. डिफिकल्टी वाइज ऑल्सो इज गुड टू सॉल्व. अच्छा क्वेश्चन है. करो. हो गया क्या बात. नो. म्हणजे बुद्धि के कलर में इंटरेस्ट, दिमाग के कलर में इंटरेस्ट. तो तेरे को पता है उसको क्या किधर है वो. हो गया. ये हो मैंने की. गुड क्वेश्चन ना. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस हम कल इसे सॉल्व करेंगे. कल ये चैप्टर मॉड्यूल का भी डिस्कशन करेंगे. मोस्ट प्रॉबेबली टुमारो दिस चैप्टर विल बी ओवर. नहीं हुआ तो थोड़ा परसों का टाइम. वो होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ्स ऑफ इनइक्वालिटी और रेशो प्रोपोर्शन.